Hello students, today we will complete the remaining part of the exercise 5.4 and in this section we will be starting from ninth question, first part. It is matrix A is equal to this one. We have to find the inverse of A and use it to solve this inverse of A. Whatever we will find from it, we will use this inverse of A in solving this system of equations. First of all, we have to find the inverse of matrix A. For that one, we have to get the determinant of A. So determinant of A is equal to expanding it along. So let's write it in determinant form first. Determinant of A 1, 1, 2, 1, 2, minus 1. 1 minus 3, 3. Expand it along row 1. Now 1 into 2 into 3, 6 minus 1 into minus 3, 3 or minus 1 into 3, 3 minus 2 into minus 3, minus 6. Minus 6, that is plus 6 or plus 1 into plus 1 into minus 1 minus 1 minus 2 to the 4. This is equal to 6 minus 3, 3 into 1, 3 or 9 into minus 1 minus 9 or minus 4 minus 1 minus 5 into 1 minus 5. And this is 9 minus 9 minus 5 minus 14 or a 3 so minus 11. This is not equal to 0. If this is not equal to 0, therefore inverse of A exists. Its inverse exists because A is non-singular matrix. Because A is non-singular matrix as this is not equal to 0. To find the inverse of A, we have to get the cofactor of each element of this determinant. Now, we have to find here Aij is a cofactor of Aij in determinant A. अब Aij A11 minus 1 to the power 1 plus 1, this is 1 plus 1 into, अब देखिए इसका कोफैक्टर रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे इन चार का डिटरमिनेंट 2 3 जा 6 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज 3 तो 6 माइनस 3 और माइनस 1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू माइनस दैट इज 1 into 3 दैट इज 3. A21 साइन क्या आएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 3 तो साइन माइनस का आएगा और इसका कोफैक्टर इसको छोड़िए 1 into 3 माइनस 1 into minus 1 तो माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 तो 3 plus 1 दिस इज माइनस 4 और A31 तो 1 plus 3 साइन पॉजिटिव आएगा इसमें इसका कोफैक्टर 1 into minus 3 minus 2 1 जा 2 minus 2 that is equal to minus 5. Cofactor of the elements of the second column तो साइन क्या रहेगा इसमें A12 साइन will be negative तो 1 into 3 और 2 into minus 3 minus 6 minus 6 that is equal to plus 6 this is equal to minus 9 और A22 साइन will be positive इसका कोफैक्टर 1 into 3 और 2 into 1 माइनस में 2 कितना आ गया 1 और A32 रो 3 कॉलम 2 साइन विल बी नेगेटिव इसका कोफैक्टर इसको छोड़िए अब 1 into minus 3 minus 1 into 1 दिस इज minus 3 minus 1 minus 4 और ये माइनस कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट the cofactor of column 3 this is A13 sign will be positive इसका cofactor 1 into minus 1 और minus में 4 minus 4 this is minus 5 A row 2 column 3 sign will be negative इसका
1 इंटू -1 और माइनस में 2, -1 -2 -3 इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू 3 और a33 साइन विल बी पॉजिटिव। इसका कोफैक्टर 1 इंटू 2 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, वी हैव गॉट द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द these cofactors. This is 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1 और इसका ट्रांसपोज this will be equal to transpose 3 -4 3 -4 -5 -9 1 4 -9 1 4 -5 3 1 -5 3 1। This is the adjoint of A. Now we have to find the inverse. Inverse क्या होगा? Inverse of A will be equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. अब 1 by determinant of A is equal to -11. तो 1 by -11 into this one you can write this minus here, -1 by 11 or 3 -9 -5 3 -9 -5 -4 1 3 और -5 4 1। दिस इज इनवर्स ऑफ ए। अभी हमने इनवर्स ऑफ ए जो फर्स्ट पार्ट था, वी हैव get the value of inverse of A. Now by using this one we have to solve this pair of this system of equations. Now we can express this in determinant form as, write this in determinant form. System of equations can be written in matrix form as, देखिए 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 2 -1 और 1 -3 3 1 -3 3। This into matrix X Y Z and this is equal to, you can say, constants 0 9 -14। Now this system can be expressed in metric forms like this. Now what is this one? Just compare it with A. A is 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और ये क्या है? 1 1 1। अब ये क्या है? What is this? This is transpose of A. This is transpose of A. तो it is transpose of A into X. This is equal to B. Transpose of A X into B. Therefore X is equal to इस ट्रांसपोज का इनवर्स, ट्रांसपोज का इनवर्स into B. ट्रांसपोज ऑफ A का इनवर्स into B. अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इनवर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ ए का। अब इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए कैन बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू बी। राइट दिस लाइक दिस। नाउ x is equal to, therefore x is equal to inverse of A. What is inverse of A? This is inverse of A और इसका ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ A 1 by -1 by 11 और this is 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1 इसका ट्रांसपोज इनटू B 0 9 -14। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लिखिए भाई, ट्रांसपोज क्या होगा? दिस इज इक्वल टू -1 by 11 और ट्रांसपोज क्या होगा? वी विल अगेन 3 -9 -5
-413 -541 into 0 9 -14. नाउ मल्टीप्लाई दें। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को? बाय रो बाय कॉलम वे, रो बाय कॉलम वे। अब देखिए -1/11 क्या होगा? देखिए अब इस रो के एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 0 0 प्लस में -9 into -9 into 9 -9 जा 81 और -5 into -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में अब 14 5 जा 70 and for the second row this row and this column -4 into 0 0 1 into 9 plus का 9 और 3 into -14 तो क्या आएगा? -14 3 जा 42 कितना? 42। अब देखिए नेक्स्ट दिस रो एंड दिस कॉलम -5 into 0 0 4 into 9 9 4 जा 36 और 1 into -14 1 into -14 -14 सिंप्लीफाई कीजिए। -1/11 कितना होगा ये? -81 प्लस का 70 -11 दिस इज माइनस कितना? -33 और ये 36 -14 दिस इज 22। अब -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 11 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 3 और -1/11 डिवाइड करेगा तो ये साइन चेंज हो गया -2। दिस इज इक्वल टू x y एंड z। ये x किसके इक्वल है? ये तो these are equal, तो therefore x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to -2। this is the solution for this system of equations। एक बार इसको दोबारा फिर हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें था हमें एक इनवर्स ऑफ a फाइंड आउट करना था। अब इनवर्स उसके बाद में इसको यूज करते हुए we have to solve this system of equations। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we will get the determinant of it। इसका determinant क्या आ गया? -11 and this is not equal to 0 means A is a non-singular matrix। non-singular matrix है, it means its inverse exists। तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ट्रांसपोज किया हमने, ये आ गया। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स इज 1/determinant of A into adjoint of A। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये इनवर्स ऑफ A आ गया। अब हमने जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया तो जब हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए। ये क्या है? ए का ट्रांसपोज। तो इसके हम क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको एक्स मैट्रिक्स मानिए, इसको मैट्रिक्स बी मानिए। अब टेक दिस ऑन द अदर साइड तो क्या होगा? एक्स विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इनटू बी। अब इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए ये किसके इक्वल होता है? ये ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए इनटू बी। ये आ गया भाई। अब इसका इनवर्स हम रखेंगे यहाँ पे, उसका ट्रांसपोज इनटू बी, इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। वी गेट x y z वैल्यू 1 3 and -2। let's come to the next question। now let's come to the 11th question and the question which we are doing today, they are very important from board examination point of view। at least out of these or such type of question which we are discussing today, you will get at least one question of 6 marks। तो ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से, ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 6 मार्क्स और बहुत अच्छे से आपको इनकी तैयारी करनी है सो दैट you don't miss any marks out of it।
Let's come to this one. Question number 11. If A is equal to this matrix and B is equal to this one. Now find A into B. First of all, you have to find A into B. You have to get the product of these two matrices and use this product in solving the system of equations which are given here. First of all, we have to get the product of AB. Now, AB is equal to 1 minus 1 0 2 3 4 0 1 2 and 2 2 4 2 2 minus 4 minus 4 2 minus 4 2 minus 1 5. ठीक, ना इनका जो प्रोडक्ट है हमें फाइंड आउट करना है. तो इनका प्रोडक्ट कैसे? रो बाय कॉलम प्रोडक्ट बाय दिस मेथड. So first of all, to get the value for this element, so this row by the product of this row element and this column and we will add them. 1 into 2, 2. Minus 1 into minus 4, plus 4. 0 into 2, plus का 0. For this one, this row and this column elements. 2 into 2, 4. 3 into minus 4, minus 12. 4 into 2 plus का 8. Now for this one, this row and this column, 0 into 2 0 or 1 into minus 4 minus 4 2 to ja 4. For this one, this row and this column, so 1 into 2 2 1 into 2 2 minus 1 into 2 minus 2 or 0 into minus 1 0. This row and this column, 2 to ja 4 3 to ja 6 4 into minus 1 minus 4. This row by this column, 0 into 2 0 1 into 2 2 or 2 into minus 1 minus 2. For this one, this row and this column, 1 into minus 4 minus 4 minus 1 into minus 4 plus का 4 0 into 5 0. This row and this column, 2 into minus 4 minus 8 3 into minus 4 minus 12 4 5 ja plus का 20. Of this row and this column, 0 into minus 4 0 1 into minus 4 minus 4 2 5 are 10 and this is equal to कितना हो गई? 2 plus 4 6. This is 0, this is 0 and 8 plus 4 12 12 minus 12 0 और 6 plus 4 minus 4 तो कितना आ गया? ये 6 और ये भी 0. ये भी कितना हो गया? 0. This is also 0 and this is 6. Now take 6 common from this matrix. This can be written as 6 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1 means this is 6 into INT matrix of order 3. ये क्या होगा? This is INT matrix, तो 6 into INT matrix. तो AB is equal to 6 into INT matrix. ठीक है भाई? इसको हम आगे यूज करेंगे. AB is equal to 6 into INT matrix. अब इसको हमें सॉल्व करना है. इसका जो हमें स्टेप लेना होगा, अब हमें क्या है, इसका जो ये देखते हैं, हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं. तो इसको फिर हम देखेंगे इसका जो हमें क्या चाहिएगा, किसका नेगेटिव चाहिएगा, वो हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद now matrix form of the given system of equation, matrix form of systems of equations is, अब देखिए इसके जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे. पहले 1 माइनस 1 और z का कोफिशिएंट क्या है? 0. तो 1 माइनस 1 0 2 3 4 2 3 4 एंड x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या माना जाएगा? 0 1 2 0 1 2 इनटू अननोन वेरिएबल x y z को कॉलम की फॉर्म में लिख के प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू, हम आमतौर पे इसके अभी नेक्स्ट क्या है, इनके जो कांस्टेंट्स हैं, दैट इज 3 17 7. व्हाट इज दिस वन? 1 minus 1 0 और 2 3 4 0 1. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज a. तो इट कैन बी रिटन एज, इट
कैन बी रिटन एज क्या, a इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू, आमतौर पे हम क्या लिखते हैं, a x इज इक्वल टू b, बट हेयर मैट्रिक्स b इज गिवन, तो हम इसको b की बजाय हम c लिख लेते हैं भाई, a x इज इक्वल टू c मैट्रिक्स, और we need to find x, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू c, इनवर्स ऑफ a इंटू c. अब व्हाट इज इट, a इंटू b, a इंटू b इज इक्वल टू 6 इंटू अल्टीमेट, तो इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a फाइंड आउट करना था इसमें, क्योंकि उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. इनवर्स ऑफ a क्या होगा भाई, अब इसमें देखिए, अब दोनों तरफ इनवर्स ऑफ a से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स ऑफ a से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू b दैट इज इक्वल टू 6 इंटू इनवर्स ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ a, तो 6 इधर आके इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू b क्या हो जाएगा b, और 6 इधर आके 1/6 दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a, तो इनवर्स ऑफ a क्या होगा 1/6 इंटू मैट्रिक्स b. तो व्हाट इज दिस वन, इनवर्स ऑफ a क्या है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a की जगह क्या लिखेंगे 1/6 इंटू b into c. You can write it as 1/6 matrix B, that is 2 2 minus 4 minus 4 2 minus 4 2 minus 1 5 into matrix C. Matrix C is 3 17 7. ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करना. Now x is equal to, we can start from here, x is equal to 1/6. अब इनका प्रोडक्ट रो बाय कॉलम में 2 into 3 2 into 3 that is 6 प्लस में 2 into 17 34 minus 4 into 7 minus 7 4 जा 28 minus 4 into 3 minus 12 2 into 17 प्लस का 34 और minus 4 into 7 minus का 28. Now 2 into 3 6 minus 1 into 17 minus 17 5 into 7 7 35. This is equal to 1/6. Simplify कीजिए भाई. अब 6 plus 34 40 40 minus 28 कितना हो गया 12, and here minus 12 और minus 28 minus 40 और plus का 34 that is 6 and minus 17 और plus का 35 कितना आ जाएगा 17 18 plus 6 24 1/6. अब क्या है अंदर इस मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 6 को इससे दिस इज 4. तो क्या आ गया भाई x इज इक्वल टू दिस वन. व्हाट इज x, x y z, x y z दिस इज इक्वल टू 2 1 4. तो क्या आ गया therefore x is equal to 2 y is equal to 1 and z is equal to 4. This is the solution for this system of linear equation. Is it clear? Let's see question number 30. Two schools P and Q. There are two schools P and Q want to award their selected students on the values of discipline, politeness and punctuality. 3 क्वालिटीज के लिए वो बच्चों को अवार्ड देना चाहते हैं, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी. The school P wants to award ₹X each, ₹Y each and ₹Z each for 3 respective values. अब जो पंक्चुअलिटी के लिए एक स्टूडेंट को ₹X देना चाहते हैं, पोलाइटनेस के लिए ₹Y और पंक्चुअलिटी के लिए ₹Z हर एक स्टूडेंट को. और कितने स्टूडेंट्स को ये अवार्ड दिए गए हैं स्कूल P में, ठीक है, 3 respective values to its 3, 2 and 1 students with total award of ₹1000. अब उन्होंने 3 स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के लिए अवार्ड दिया है, 2
स्टूडेंट्स को पंक्चुअलिटी के लिए और 1 स्टूडेंट को 2 स्टूडेंट्स को पोलाइटनेस के लिए और 1 स्टूडेंट्स को पंक्चुअलिटी के लिए। और जो ये टोटल 6 स्टूडेंट्स को जो अवार्ड दिया, वो जो अवार्ड मनी हुई वो कितनी हुई? 1000। और देयर इज अनदर स्कूल Q wants to spend ₹1500 to its 4, 1 and 3 students। 4 स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के लिए, 1 स्टूडेंट्स को पोलाइटनेस के लिए और 3 स्टूडेंट्स को पंक्चुअलिटी के लिए अवार्ड दिया। और टोटल अवार्ड मनी कितनी हुई? 1500। एंड इफ द टोटल अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यूज इज ₹600, यानी कि एक डिसिप्लिन के लिए, एक पोलाइटनेस के लिए और एक पंक्चुअलिटी के लिए अगर टोटल सभी का तीनों का एक प्राइस मनी ऐड करते हैं तो दैट्स अकाउंट टू 600। यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यूज, x y z की हमें वैल्यू निकालनी है। देन अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज सजेस्ट 1 मोर वैल्यू फॉर द अवार्ड, कि वे जो ये 3 डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी के लिए स्टूडेंट्स को जो अवार्ड दिया है, और कोई कौन सी वैल्यू है जिसके लिए स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जा सकता है। देयर आर मेनी मोर। तो इसमें आप सिंसियरिटी को इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई सिंसियर स्टूडेंट होगा उसको दिया जाएगा, कोई कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स होगा तो उसको अवार्ड, डिसिप्लिन और ये सारी चीजें उसमें आ गई। और बहुत सारी एक्टिविटीज उनमें, इसमें जो क्वालिटीज है वो ऐड कर सकते हैं और उसमें अवार्ड दिए जा सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देना है तो वी कैन ऐड सिंसियरिटी टू गिव द। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस स्टेटमेंट्स इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो पहले में देखिए, अकॉर्डिंग टू, वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज इट? x y z प्राइस फॉर ईच प्राइस। अब पहले P स्कूल के लिए, अब भाई 3 स्टूडेंट्स को किसके लिए? डिसिप्लिन के लिए प्राइस दिया है और एक प्राइस की मनी है x, तो 3 स्टूडेंट्स को कितना अमाउंट दिया जाएगा? कितना? 3x प्लस में 2 स्टूडेंट्स को किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए, और पोलाइटनेस का हर प्राइस कितने का है? y रुपीस, तो कितना होगा ये? 2y। और 1 स्टूडेंट्स को किसके लिए? पंक्चुअलिटी के लिए, और वो कितना है? z प्लस में z। और ये टोटल प्राइस कितना हुआ भाई? 1000। कितना हुआ? 1000। सेकंड केस में जो Q स्कूल है वो 1500 इन्वेस्ट करता है, अवार्ड मनी देता है। 4 स्टूडेंट्स किसके लिए? 4 स्टूडेंट डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन का एक प्राइस है x रुपीस का, तो 4 कितना हो गया? 4x प्लस में 1y, दैट इज y, और प्लस में 3z, और टोटल अमाउंट कितना हुआ? 1500। और थर्ड जो केस है, टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज फॉर ईच वैल्यू, यानी कि x प्लस y प्लस z, तीनों का कितना हो गया? 600। x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 600। अब ये 3 इक्वेशन आ गए। अब इन 3 इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे पास हर एक प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, हर एक प्राइस की अमाउंट आ जाएगी, भाई कितना अमाउंट हर एक प्राइस का है। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। 3x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1000, और 4x प्लस y प्लस में 3z दैट इज इक्वल टू 1500, और x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 600। तो वी हैव रिटन these statements in equation form। ये लिख लिया। हमें अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है, और फिर हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इट कैन बी रिटन एज ax is equal to b, ax is equal to b where a is equal to, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, 3 2 1 3 2 1 4 1 3
4 1 3 1 1 1 1 1 1 और x क्या होगा, x इज इक्वल टू जो अननोन वेरिएबल है उसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। फिर उसके बाद b है, b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1000 1500 और 600। ठीक है, अब हमें इनको सोल्व करना है और फिर इसकी unknown variables find out करना है। For this one, first of all, we will check whether this A is singular or non-singular matrix। तो determinant इसका find out करेंगे। Determinant of A is equal to 3 4 1 2 1 1 1 3 1। Expand it along row 1। तो 3 into 1 into 1 1 minus 3 1 minus 3 और minus 2 into 4 minus 3 4 minus 3 और plus 1 into 4 minus 1 4 minus 1। तो this is equal to 1 minus 3 minus 2 into 3 minus 6 और 4 minus 3 1 into minus 2 और this is 4 minus 1 3 into 1 plus का 3। कितना हो गया ये -6 -8 plus 3 this is -5 and this is not equal to 0। तो वे determinant of A is not equal to 0, therefore A is a non-singular मैट्रिक्स। non-singular मैट्रिक्स है, therefore inverse of A exists। inverse of A exists। अब inverse of A exist करता है तो inverse find out करने के लिए सबसे पहले हमें इसको adjoint find out करना पड़ेगा। To find the adjoint of this matrix A, we have to get the cofactors। तो find cofactors of A। cofactors of A, तो A11 that is equal to -1 की पावर 1 plus 1। देखिए इसका कोफैक्टर तो कितना हो गया 1 minus 3 that is equal to -2 और ये 1 तो कितना हो गया -2। अब A21 रो 2 कॉलम 1 तो -1 की पावर 3 साइन माइनस आ जाएगा। इसका कोफैक्टर कितना हो गया 2 minus 1 that is 1 minus 1 और A31 साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इसका कोफैक्टर 3 2 6 minus 1 that is equal to 5। now cofactor of column second, तो A12 साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो इसका कोफैक्टर कितना हो गया 4 minus 3 that is equal to -1। A22 साइन will be positive, इसका कोफैक्टर 3 minus 1 that is equal to 2। cofactor of A32 sign will be negative, इसका cofactor क्या होगा 3 3 9 minus 4 that is 5 और ये -5। cofactor of next A13 रो 1 कॉलम 3 cofactor कितना होगा इस एलिमेंट का 4 minus 1 that is equal to 3 और A23 तो साइन क्या होगा नेगेटिव, इसका कोफैक्टर 3 minus 2 that is equal to 1 और ये -1। A33 इसका 3 minus 4 2 जा 8 3 minus 8 that is equal to -5। इसका कोफैक्टर क्या होगा 3 minus 8 -5। नाउ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, इसके जो कोफैक्टर्स है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ A that is equal to -2 -1 5 -2 -1 5 और -1 2 -5 -1 2 -5 3 -1 -5 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 -5। ठीक है भाई ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालना है इसका
inverse of A. Inverse of A is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. 1 by determinant of A. What is determinant of A? Determinant of A is equal to -5. तो -1 by 5 into adjoint of A is -2, -1, 3, -1, 2, -1, 5, -5, -5, ठीक है भाई। अब हम क्या निकालना है, हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को, x की वैल्यू निकालनी है। तो ax इज इक्वल टू b, सो इनवर्स x इज इक्वल टू ये उधर जाके इनवर्स ऑफ a इनटू b, देयरफॉर x is equal to inverse of a into b. Inverse of a कितना है, -1 by 5, -2, -1, 3, -1, 2, -1, 5, -5 into b. b is this one, तो 1000, 1500 और ये 600, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 by 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई रो बाय कॉलम वे में, -2 into 1000 -2000 और -1 into 1500 -1500 और 5 into 600 प्लस में 6 5 ये 3000 आ गया, और दिस रो बाय दिस कॉलम -1 into तो -1000 और 2 into 15 प्लस का 3000 और ये -5, ये -6 5 30 -3000। दिस रो बाय दिस कॉलम 3 into 1000 3000 प्लस में -1 into 1500 तो माइनस का 1500 और माइनस का -5 और कितना हो गया -6 5 3000। अब दिस इज इक्वल टू -1 by 5 इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, -2000 -1500 कितना हो गया -3500 और ये प्लस का तो कितना आ गया -500। अब ये देखिए भाई ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1000 और ये 3 प्लस का 3000 माइनस का 3000 कितना हो गया -1500। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सभी पॉजिटिव हो जाएंगे और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस के सभी प्लस हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 100, 5 से 5 हो जाए 200, दिस इज 200 और ये 5 3 300। तो क्या आ गया x क्या है भाई, therefore x is equal to 100, y is equal to 200 and z is equal to 300। और x क्या था, x किस चीज की वैल्यू थी, x फॉर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का एक अवार्ड की वैल्यू, डिसिप्लिन के ईच अवार्ड, तो अवार्ड मनी ऑफ डिसिप्लिन कितना आ गया ₹100 और अवार्ड मनी फॉर नेक्स्ट वाज पोलाइटनेस ₹200 और नेक्स्ट वाज फॉर पंक्चुअलिटी ₹300, ठीक है। और उसमें एक पूछा था भाई इन तीनों से किस चीज के लिए, किस क्वालिटी के लिए अवार्ड दिया जा सकता है, हम एक सिंसियरिटी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं तीनों, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, इसमें कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, बिकॉज इन योर फाइनल एग्जाम, इन CBSE बोर्ड एग्जाम, these type of questions generally comes in paper and the question is of 6 marks. So you have to sincerely do these questions and practice for these questions. It's okay. Good day.